ناظرین آداب، دوپہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہے سرخیاں۔ آئی کے پی مراکز کو نہیں کیا جائے گا منسوخ، جی کشن ریڈی کا تاثر۔ نئے زرعی قوانین پر اپوزیشن کا احتجاج بے معنی۔ خریف سیزن میں کم از کم اقل ترین امدادی قیمت پر 92 لاکھ کسانوں کو فائدہ پہنچا، مرکزی وزارت صحت کا انکشاف۔ کسانوں کی فلاح و بہبود ہی حکومت کا اہم مقصد۔ مودی دور حکومت میں لائے گئے اصلاحات کی پچھلے 70 برسوں میں نہیں ملتی نظیر، ڈاکٹر ہرش وردھن کا بیان۔ جیو اسپیشلائزیشن شعبے میں نئے طریقہ کار متعارف۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دلی پولیس کی ستائش، دارالحکومت کی سیکیورٹی میں پولیس نبھا رہی ہے اہم کردار۔ اور مرکزی وزیر ٹیکسٹائل سمرتی ایرانی جوٹ کے بیجوں کی تقسیم کے پروگرام کا کیا آغاز۔ زراعت سے منسلک شعبوں کی ترقی کے لیے حکومت کر رہی ہے مؤثر اقدامات۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مرکزی وزیر مملکت و بی جے پی قائد جی کشن ریڈی نے بی جے پی قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ نشانے کے حصول کے لیے سخت محنت کریں۔ حیدرآباد میں منعقدہ سینٹرل ٹیم آفیسرز کے اجلاس میں انہوں نے بطور مہمان خصوصی خطاب کیا۔ کشن ریڈی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے کئی ایک اصلاحات لائے ہیں، جس میں قابل ذکر ون نیشن ون ٹیکس، بڑے کرنسی نوٹوں کی منسوخی جیسے فیصلے ملک کی ترقی میں کافی مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ کشن ریڈی نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی سے تعلیمی شعبے کی ترقی ہوگی، جس کے ساتھ ساتھ مادری زبان میں تعلیم کا رجحان بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ مادری زبان میں تعلیم سے طلباء سبق کو آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ انجینئرنگ طالب علموں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کی تربیت دیتے ہوئے انہیں روزگار سے مربوط کیا جا رہا ہے۔ کشن ریڈی نے مزید کہا کہ نئے زرعی قوانین کسانوں کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان قوانین میں کہیں بھی آئی کے پی سینٹرز کو ختم کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ کشن ریڈی نے واضح کیا کہ گریجویٹ زمرے کے ایم ایل سی انتخابات میں بی جے پی کی جیت یقینی ہے۔ సంస్థలు కావచ్చు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాయి। నరేంద్ర మోడీ గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అనేక రకాల సంస్కరణలు చిత్తశుద్ధితో పవిత్రమైనటువంటి మనసుతో దేశానికి మేలు జరగాలి, ప్రజలకు మేలు జరగాలి, దేశం శక్తివంతంగా మరింత ముందుకు ఎదగాలనేటువంటి ఒక పవిత్రమైనటువంటి లక్ష్యంతో అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు, అనేక రకాల కొత్త చట్టాలు తీసుకొచ్చారు। అవి ఆర్థిక సంస్కరణలు కావచ్చు, మొట్టమొదటి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అతిపెద్ద ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ అంటే జిఎస్టి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి మరి ఇంపార్టెంట్ ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ మన దేశంలో తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు। ریاست میں گزشتہ کے مقابلے اس بار فضائی آلودگی مختلف ہے۔ ریاستی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق پچھلی بار حیدرآباد میں فضائی آلودگی کا تناسب سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا تھا، تاہم اس بار ضلع محبوب نگر میں فضائی آلودگی زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ سال 2020 میں فضائی آلودگی میں محبوب نگر ضلع سر فہرست ہے، جبکہ حیدرآباد کو 5واں مقام حاصل ہوا ہے۔ محبوب نگر میں سب سے زیادہ 102 ملی گرام، کریم نگر میں 100 ملی گرام فضائی آلودگی ریکارڈ کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں یہ شرح 79 ملی گرام ریکارڈ کی گئی۔ سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ پیمانے کے مطابق کیوبک میٹر ہوا میں 10 پی ایم سی کی سالانہ اوسط 60 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کہیں آلودگی کی یہ شرح مقررہ حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اسے خطرے کے زون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق گاڑیوں کی بڑھتی تعداد اور خستہ سڑکیں، کھلے میں کچرا نظر آتش کرنا فضائی آلودگی کی اہم وجہ ہے۔ ملک میں دھان کی پیداوار میں قابل لحاظ اضافہ ہوا ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق رواں سال خریف کے سیزن میں 92 لاکھ کسانوں سے کم از کم اقل ترین قیمت پر دھان خریدے گئے۔ خریف کے سیزن میں 1,20,000 کروڑ روپے کم از کم اقل ترین قیمت کے تحت کسانوں کو ادا کیے گئے۔ پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، تلنگانہ، اتراکھنڈ، تمل ناڈو، چندی گڑھ، جموں کشمیر، کیرل، گجرات، مغربی بنگال اور تریپورہ ریاستوں سے 640 لاکھ ٹن دھان خریدی گئی۔ گزشتہ سال کے مقابلے 15.71% پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ صرف پنجاب میں ہی 31.70% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में बल्दी इंतखाबात के लिए स्केड्यूल जारी किया गया। आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक 10 मार्च को बल्दी इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। 14 मार्च को वोटों की गिनती होगी। गुज़िश्ता बार थम गई वोटिंग का अमल एक बार फिर शुरू हो गया है। 3 मार्च दोपहर 3 बजे तक पर्चे नामजदगियां दाखिल की जा सकती हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता मार्च की 23 मार्च को बल्दी इंतखाबात होने थे, ताहम कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार में ऐसी तब्दीलियां लाई जा रही हैं जिसकी नज़ीर गुज़िश्ता 70 वर्षों में कहीं भी दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि शहरियों को आसानी पैदा करने के लिए अब तक 15,000 से ज़ायद ख़वातीन को मंसूब किया जा चुका है। हर्षवर्धन ने कहा कि जियो स्पेशलाइजेशन के शोबे में इस्लाहात से मुल्क में बहुत से इजारात की राह हमवार हुई है। मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द हिंदुस्तान को $5 खरब की मैशियत में तब्दील करने के लिए मुतअद्दिद इस्लाहात ला रही है। हाई रेजोल्यूशन मैप्स की अदम दस्तियाबी की वजह से फार्मिंग, माइनिंग, अर्बन कंस्ट्रक्शन, ई कॉमर्स जैसे शोबेजात को शदीद मुश्किलात दरपेश थे। इन मसाइल को दूर करने के लिए मॉडर्न मैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। Towards achieving this $5 trillion economy and the Atmanirbhar Bharat, we decided to bring in high-resolution maps that will remove all the previous problems. Friends, location and tags added to the data shall make it geospatial and its value will increase manifold. Availability of data and modern mapping technologies to Indian companies shall also be crucial for achieving a manifold jump in our economic growth. मरकजी वज़ीर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने आज अपनी वजारत की कारकर्दगी का आला अहदेदारों के साथ जायजा लिया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ज़राई शोबे और उसके मुंसलिक शोबेजात की हमाजह तरक्की के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। स्मृति ईरानी ने आज जूट की बीजों की तकसीम के प्रोग्राम का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी के बाद जूट से बने थैलियों का इस्तेमाल बढ़ गया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जूट के किसानों की हिम्मत अफजाई और उन्हें मुराद देते हुए प्लास्टिक के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर कम करने के इक़दाम कर रहे हैं। साल 2014-15 में जूट में एमएसपी 2,400 रुपए था, जो बढ़ के साल 2020-21 में 4,225 रुपए हुआ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमएसपी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार एमएसपी की राशि सीधा किसान के बैंक के खाते में त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए मैं विशेष अभिनंदन टीम जूट का टेक्सटाइल विभाग और कृषि मंत्रालय में करना चाहती हूं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज यौम जमहूरिया की परेड 2021 का बेहतरीन मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड्स पेश किया। तीनों सर्विस में से बेहतरीन मार्चिंग दस्ते को जॉर्ज रेजिमेंट पेश किया गया, जबकि दिल्ली पुलिस ने सीआरपीएफ और दीगर मुआविन फोर्सेस के माबैन बेहतरीन मार्चिंग दस्ता जीता। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने मार्च में शामिल सभी दस्तों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कोविड बहरान के बावजूद यौम जमहूरिया के मौके पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि मैं जब भी यौम जमहूरिया की परेड देखता हूँ, लम्हा ब लम्हा दस्तों की मार्च का मुशाहिदा करता हूँ। इसका अंदाज़ा लगाना वाकई मुश्किल हो जाता है कि कौन सा दस्ता बेहतरीन है। मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि हर दस्ता बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। उन्होंने कहा कि हर साल हिंदुस्तान राजपथ पर अपनी ताकत का मुजाहरा पेश करते हुए अपनी सलाहियतों के बारे में दुनिया को एक पैगाम भेजने की कोशिश करता है। उन्होंने दिल्ली पुलिस के किरदार की काफ़ी सताइश की। राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस को मुल्क के किसी भी पुलिस फोर्स से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। कुछ गैर मुल्की ताकतें कौमी हुकूमत को निशाना बनाने की कोशिश करती हैं। दिल्ली पुलिस इस तरह के सभी चैलेंजों से निपट लेती है। भी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती हैं। बराबर हमारी दिल्ली पुलिस को उसके लिए सक्रिय रहना पड़ता है। तो इस काम में भी लगे रहने के बावजूद amongst the
ऑक्सिलरी फोर्सेस और हमारी आर्म्ड पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनके बीच बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड हासिल करना, ट्रॉफी हासिल करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए जहां पर मैं अपनी जाट रेजिमेंट, जिसने कि बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट के रूप में अवार्ड हासिल किया है, उसको भी बधाई देता हूं, और दिल्ली पुलिस को भी इस अवार्ड के लिए अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फिलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियां, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। IKP मराकिज़ को नहीं किया जाएगा मनसूख, जी किशन रेड्डी का तासुर। नए ज़रई क़वानीन पर अपोजिशन का एहतजाज बेमाने। खरीफ सीजन में कम अज़ कम अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर 92 लाख किसानों को फ़ायदा पहुंचा। मरकज़ी वज़ारत सेहत का इंकशाफ। किसानों की फलाह बहबूद ही हुकूमत का अहम मकसद। मोदी दौरे हुकूमत में लाए गए इस्लाहात की पिछले 70 वर्षों में नहीं मिलती नज़ीर, डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। जियो स्पेशलाइजेशन शोबे में नए तरीक़ेकार मुतारुफ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस की सताइश। दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी में पुलिस निभा रही है अहम किरदार। और मरकजी वज़ीर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी जूट के बीजों की तकसीम के प्रोग्राम का किया आगाज़। ज़राअत से मुंसलिक शोबों की तरक्की के लिए हुकूमत कर रही है मौसर इक़दामात।